Good morning. Today we are going to discuss one interesting topic, that is hemolysis. आप सबको पता है that hemolysis is an important pre-analytical issue in many laboratories. अगर सैंपल ही अच्छा नहीं है तो रिजल्ट अच्छा कैसे मिलेगा? So we need to take care of hemolysis. ये सेशन में हम आपको सिखाने की ये कोशिश करेंगे hemolysis क्यों होता है और hemolysis से हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है. To understand hemolysis, first let us know what is hemolysis. Hemolysis is rupturing or lysis of red blood cells and release of its internal contents into surrounding fluids. आपको पता है red blood cell is like a bag, it's like a sack. इसके अंदर पे साइटोप्लाज्म रहता है और उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन भी रहता है. और आपको यह भी पता है हीमोग्लोबिन इज इन रेड कलर. तो नेचुरल सी बात है किसी कारण में अगर आरबीसी रप्चर्ड होते हैं तो उनकी इंटरनल मटेरियल यानी कि साइटोप्लाज्म उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन बाहर आ जाते हैं और प्लाज्मा के साथ मिल जाता है एंड प्लाज्मा लुक्स लिटिल रेडिश इन कलर. अब हीमोलाइसिस दो तरीका में हो सकता है. एक हो सकता है इन विवो, दैट इज इनसाइड द बॉडी, एंड इन विट्रो, दैट इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी. नमस्कार, मेरा नाम है प्रशनजीत एंड आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूं जो हीमोलाइसिस क्या होते हैं और हीमोलाइसिस में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और हीमोलाइसिस से हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है. लेट अस गो फॉरवर्ड एंड सी द फुल सेशन. To begin with, let us understand what is in vivo hemolysis. Once hemolysis happens in blood, that is within the body, we call it as a in vivo hemolysis. Now, in vivo hemolysis can happen for large number of medical conditions. जैसे कि कोई व्यक्ति को अगर मलेरिया हुआ, in that case, the person will have a plasmodium parasite within the body. And if the malaria is of very high level and plasmodium parasites are in very high concentration in the blood, it causes in vivo hemolysis. There are some autoimmune disorders, say for example, autoimmune hemolytic anemia, which also can cause in vivo hemolysis. Apart from that, some drug-induced hemolytic anemia, atypical hemolytic uremic syndrome, and even in some genetic disorders like sickle cell disease or D6PD deficiency, in those cases also in vivo hemolysis can happen. But आज की डिस्कशन मेनली ऑन इन विट्रो हेमोलाइसिस के ऊपर है, जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम की कारण है. कोई भी एक इन विट्रो डायग्नोस्टिक सेंटर उसको फेस करते हैं और हमें उनको हैंडल करना होता है. Now, hemolysis happens in blood during and after the blood collection, जिनको हम in vitro hemolysis कहते हैं. Now, there are several reasons for which in vitro hemolysis can happen. अगर in vitro hemolysis होता है, आपको पता ही है that the serum or plasma will become reddish in color, and in many cases the specimen had to be rejected. The specimen को reject करना पड़ता है, लैब के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहते. To understand the different level of hemolysis, let us see these four blood collection tubes. Now, tube number 1, you can see it's a good quality sample, which is a straw yellow colored serum. Tube number 2, there are slightly hemolyzed sample, and tube number 3 and 4, these are highly hemolyzed samples. So naturally, the serum color is quite reddish. Now, let us see what are the problems happens with hemolyzed sample. यानी कि hemolyzed sample होने से problem actually होता क्या है? Now, अगर प्लाज्मा और सीरम पे हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा पे है तो नेचुरली इट इंटरफेयर्स इन रिएक्शंस व्हिच हैपेंस ड्यूरिंग बायोकेमिस्ट्री एंड एलाइजा प्रोसेसेस. नाउ ऑफ कोर्स अगर इंटरफेरेंस है तो रिजल्ट सही नहीं आएगा. अगर रिजल्ट सही नहीं आएगा तो नेचुरली इट कैन इंपैक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट. नंबर 2, अगर सैंपल को फर्दर रिकलेक्ट करना पड़ता है, it involves time, तो वक्त भी जाएगा and it involves cost also. So खर्चे भी बढ़ेंगे laboratory का. Not only these two, apart from that, patient also will feel uncomfortable, right? And number 3, अगर सैंपल में hemolysis हुआ है यानी कि RBC got ruptured,
naturally your cell counting results, especially for RBC and RBC related parameter like hematocrit and other parameters, will not be correct. And number 4, hemolysis can falsely elevate several biochemical elements जैसे कि पोटेशियम, SgOT, LDH, ये सब पैरामीटर की results becomes high if the sample is hemolyzed. And also, hemolysis is having a very high interference on measurement of sodium, chloride, iron, lipase, albumin, creatine kinase, ALP, gamma GT, and several other parameters. Now let us see what are the possible places where hemolysis can happen. First, once the sample is collected, chances of hemolysis are high. Once you are handling the sample, then also possibility of hemolysis is there. And once you are transporting the sample from one place to another place for special assays, then also chances of hemolysis are there. Now let us see how to stop hemolysis in these 3 stages. First, the possible way to avoid the hemolysis during collection of sample. याद रखिएगा, you should use preferably 22 or 23 gauge of needle. यानी कि ग्रीन और ब्लैक कलर की निडल आपको यूज करना चाहिए. प्लीज डू नॉट यूज स्मॉल गेज निडल. अगर आप पतला निडल यूज करेंगे तो आरबीसी रप्चर ज्यादा होएगा और हिमोलाइसिस होने की चांस बढ़ेंगे. सेकेंड इज दैट इफ यू आर यूजिंग इंट्रावेनस कैनुला फॉर ब्लड कलेक्शन, तो आपको यह ख्याल रखना पड़ेगा दैट कैनुला इज नॉट पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड. कैनुला की कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. अगर कैनुला में ऑब्स्ट्रक्शन है तो चांसेस ऑफ hemolysis increases. Third point, you have to allow the alcohol to dry before the venipuncture. यानी कि वेनिपंक्चर की पहले जो आप अल्कोहल यूज करते हैं उसको आपको ड्राई होने देना चाहिए. Please do not do hasty and collect the blood. And number 4, please do not bind the tourniquet for a prolonged time, which is more than 1 minute. अगर आप 1 मिनट के ज्यादा टॉर्निकेट बांध के रख रहे हो हाथ पे तो चांसेस ऑफ हिमोलाइसिस इंक्रीजेस. अगर आपको लग रहा है आपने बहुत ज्यादा लंबा टाइम टॉर्निकेट को बांध के रखा, देन प्लीज ओपन द टॉर्निकेट एंड रीडू द प्रोटोकॉल वंस अगेन आफ्टर 2 मिनट्स. तो अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे तो ज्यादातर सैंपल कलेक्शन की टाइम पे हिमोलाइसिस होने की चांसेस कम हो जाए. नाउ लेट अस सी द सेकंड लेवल. अब सैंपल जब हैंडल करेंगे तब भी तो हिमोलाइसिस होने की चांसेस है, राइट? सो ड्यूरिंग दैट टाइम प्लीज डू नॉट मिक्स द ट्यूब्स टू विगोरसली. Have a gentle mixing by inverting the tube. क्योंकि देखिए आपको प्लाज्मा निकलने के टाइम पे आपको एंटीकोगुलेंट और ब्लड को सही तरीके से मिक्स भी करना है, बट वो मिक्सिंग शुड नॉट बी टू विगोरस. अब बहुत ज्यादा शेक मत कीजिएगा. जेंटल इन्वर्शन ऑफ ट्यूब इज गुड एनफ. नो हैव ए प्रॉपर ब्लड वर्सेस एंटीकोगुलेंट रेशियो. मैंने आपको पहला वीडियो में भी कहा था दैट इन एवरी ब्लड कलेक्शन ट्यूब देयर इज ए ब्लैक मार्क जिनको हम कहते हैं फिलिंग मार्क. यू मस्ट टेक ब्लड अप टू द फिलिंग. उससे बहुत ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए, कम भी लेना नहीं चाहिए. नंबर 3, प्लीज अवॉइड कलेक्शन इनटू सिरिंज विथ एक्सेसिव सक्शन अप्लाइड इनटू द प्लंजर. यानी कि जब आप सिरिंज से ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं तब प्लंजर के ऊपर बहुत प्रेशर से ब्लड को कलेक्ट मत कीजिए. स्लोली इन ए नेचुरल प्रोसेस आप ब्लड को कलेक्ट कीजिए so that RBC will not get ruptured. Number 4, which is the very important point once again, अगर आप नॉन वैक्यूम ट्यूब में ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो एंड यू आर कलेक्टिंग द ब्लड थ्रू सिरिंज, तब ब्लड कलेक्शन के बाद जब आप नॉन वैक्यूम ट्यूब के अंदर पे ब्लड को डालेंगे तब नीडल को ओपन कर लीजिए एंड स्लोली पुश द प्लंजर टू पोर द ब्लड इनटू द ट्यूब. अगर आप नीडल के द्वारा ब्लड को नॉन वैक्यूम ट्यूब के अंदर पे पुश करते हैं तो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रेशर द आरबीसी गेट रप्चर्ड एंड चांसेस ऑफ हिमोलाइसिस इंक्रीजेस. तो अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे तो नेचुरली आप सैंपल हैंडलिंग के टाइम पे हिमोलाइसिस को रुक पाए. नाउ लेट अस सी द थर्ड स्टेज. जब आप सैंपल को ट्रांसपोर्ट करेंगे तब भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट सैंपल्स आर नॉट शेकिंग टू मच. तो उसके लिए आपको सही पैकिंग मटेरियल के द्वारा सैंपल को पैक करना पड़ेगा विद सफिशिएंट फोमिंग इनसाइड सो दैट सैंपल ज्यादा मोबिलाइज ना करे. एंड इसके साथ साथ में आपको कोल्ड पैक तो यूज करना ही पड़ेगा
If possible, use insulated container for the overnight delivery. And the best possible way is that to collect the fresh blood samples from the patient. तो ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल, देन यू कैन reduce the chances of hemolysis. So, before ending, I'd like to give few interesting information. आपको सबको पता ही रहेगा, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ that by using bichromatic method, you can nullify the effect of hemolysis a little bit up to certain extent. Nowadays, there are special controls which is available. Those are known as serum indices controls, and these are designed to monitor the ability of an instrument to accurately measure the specimen which are not so good. आज इतना ही. Thank you so much. Thank you for your attention. फिर आएंगे, आपको फिर मिलेंगे with our new video.